Hello students, we are going to start with paper 2 of mathematics. We are going to start with the first lesson, that is complex number. In complex number, today we are going to see introduction, the definition, algebra of complex numbers, and in algebra of complex number we'll be seeing equality of two complex number, conjugate of a complex number, addition, subtraction, scalar multiplication and multiplication of complex numbers. So let's start with the introduction. Now the very first thing is we should know what is a imaginary number. Now when I have taken the introduction lecture last week, I have told you that when we'll study about complex number, you have studied the quadratic equation. आपने quadratic equation learn किया हुआ है. Quadratic equation is ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने के लिए हमने फॉर्मूला लर्न किया है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a, right? And whenever you get here you get a negative term inside the root. Suppose आपको मिलता है से x is equal to root of minus 7. तो जैसे ही ऐसा नंबर मिलता है हम लिखते थे roots does not exist. The roots does not exist. If the root does not exist, this does not exist in the real number system. लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम नए से डिफाइन करेंगे. The new terminology that is called as the imaginary number. Now let's see what do we mean by imaginary number. अब ये जो नंबर है रूट ऑफ माइनस 7, दैट कैन बी रिटर्न एज रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ माइनस 1. अब हम क्या करेंगे, दिस रूट ऑफ माइनस 1 वी आर गोइंग टू राइट दिस नंबर एज आई. तो ये जो रूट ऑफ 7 है इसको अब हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय आई. सो रूट ऑफ 7 आई, दिस इज अ न्यू नंबर एंड दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज imaginary numbers. So the definition is a number of the form bi where b is a real number, b is not equal to 0, I is equal to root of minus 1 is called as imaginary number. तो इस तरह के numbers को हम बोलते हैं imaginary numbers. Now there are few notes that you should remember about the imaginary numbers. Now the number I always satisfy the following properties. The first property is I multiply by 0. I नंबर है रूट ऑफ माइनस 1. अगर रूट ऑफ माइनस 1 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 0. नेक्स्ट इज इफ a बिलोंग्स टू r, a इज अ रियल नंबर और हमें चाहिए है रूट ऑफ माइनस ऑफ a स्क्वायर. सो दैट वैल्यू इज सेम एज रूट ऑफ माइनस 1. रूट ऑफ माइनस 1 मतलब होता है i. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई स्क्वायर. सी रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आई है, तो हम रूट ऑफ सिर्फ माइनस 1 अगर देखते हैं तो माइनस 1 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर. सो वी आर राइटिंग आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का तो रूट ले सकते हैं, आई स्क्वायर का भी रूट ले सकते हैं. सो दैट वैल्यू इज प्लस और माइनस आई इंटू ए. सो दैट इज द प्रॉपर्टी. Next property is if a and b belongs to R and you are given that ai is equal to bi, then you can say that a is equal to b. I का वैल्यू तो सेम रहेगा, a और b का वैल्यू भी सेम हो जाएगा if you are having a into I is equal to b into I. So these are the properties of imaginary number. अब ये imaginary number use करके we are going to define the new number that is called as a complex number. Now let's see what is the definition of the complex number. The definition is a number of the form a plus bi where a and b are real number, I is equal to root of minus 1. That is, you can say I square is equal to minus 1 is a complex number and it is denoted by z. अब a एक रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है एंड i का वैल्यू अगर हमारे पास है रूट ऑफ माइनस 1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं z. z इज द नोटेशन, z इज इक्वल टू a प्लस b इंटू I. सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म. सो दैट इज यू कैन से z इज इक्वल टू i इंटू b, a वेर a एंड b बिलोंग्स टू r एंड i इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1. सो दैट इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म. I आप चाहे आगे लिखो या पीछे लिखो, बोथ द वैल्यूज आर द सेम. सो यहाँ पे I आगे लिखा है, यहाँ पे I पीछे लिखा है. Now here this A, ये जो first part है इसका, this part is called as the real part of Z and it is denoted by real Z or R of Z.
बी, ये जो बी पार्ट है, this b part is called as the imaginary part of z and it is denoted by imaginary z or I of z. So इमेजनरी नंबर जो i के साथ जो भी पार्ट रहेगा दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द इमेजनरी पार्ट, और जिसके बाजू में i नहीं है उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट. सो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट रहते हैं, एक रियल पार्ट रहता है और दूसरा होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है. सो हियर वेयर देयर इज नो i दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द रियल पार्ट, और जहां पे i रहेगा वो वाले पार्ट को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टैंडिंग दिस. Now let us see this set of complex number is denoted by C. तो ये जो set of complex number है इसको हम C से denote करते हैं. जैसे real numbers को R से denote करते हैं वैसे complex number को C से denote करते हैं. And the set is written as C is equal to set of all the numbers a plus bi such that a and b are real number and I is equal to root of -1. अब ये जो हमारा C सेट है, ये C सेट जो है वो बड़ा सेट है देन द रियल नंबर सेट, क्योंकि यहाँ पे देखो रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर दोनों को अगर प्लस करेंगे तो बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दो नंबर्स को ऐड करने के बाद ये पार्ट बना है एंड दैट इज व्हाई द सेट इज अ बिगर सेट. Now there are few notes that we are going to study. The first one is a complex number whose real part is 0. अगर इसका real part अगर 0 हो जाता है then it is called as purely imaginary number. तो ये सिर्फ imaginary number हो जाता है b into I. Such numbers is of the form z is equal to I into b, that is imaginary numbers. तो अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मिलेगा. उसी तरह से अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो सिर्फ रियल पार्ट हमें मिलेगा. सो द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0 इज अ रियल नंबर एंड इट इज अ रियल नंबर. सो अगर ये वाला पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा तो हमें z क्या मिलने वाला है, z इज गोइंग टू बी ओनली रियल नंबर्स. तो अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो सभी रियल नंबर्स हमें मिलेंगे, और अगर हमारा रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो सभी हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो इमेजिनरी नंबर्स मिलेंगे. सो यू कैन सी द एज आई टोल्ड यू C सेट इज अ बिगर सेट देन द R सेट. The complex number whose both real and imaginary part are 0 is called zero complex number. So that is you can say 0 is equal to 0 plus 0 I. तो 0 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है, रियल नंबर्स में भी आता है. सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर. द सेट R of real numbers is a subset of the set C that is a complex number set. अभी मैंने आपको बताया R set जो है वो C से छोटा होता है. C is bigger than R. So you can say that R is a subset of complex number. You can say it is a proper subset also. The real part and the imaginary part cannot be combined to form a single term. मतलब अगर आपके पास है 2 plus 3i तो 2 तो रियल पार्ट है, 3i जो है वो इमेजिनरी पार्ट है. आप ये दोनों को प्लस करके इसको 5i नहीं लिख सकते. You cannot write it in this form. You have to remember all these properties. Or you can say if you remember this property it will be easier for you to solve the next examples. Now we are going to study the algebra of complex number. Now what is algebra of complex number? Algebra में हम स्टडी करने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन. डिवीजन विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. फिलहाल तो हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन तक देखेंगे. In this algebra of complex number, you have two more algebras. The first one is called as the equality of two complex number. अगर दो complex number दिए हैं तो हमें देखना है कि ये दोनों equal कब होंगे. So the definition says that two numbers says z1 is equal to a plus bi and z2 is equal to c plus id are said to be equal if their corresponding real part and imaginary part are equal. मतलब क्या है, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट सेम होना चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट सेम होना चाहिए. देन ओनली यू कैन से दिस z1 is equal to z2. So let's take an example. If you are given
x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, तो क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट है वो इसका रियल पार्ट से सेम हो जाएगा, दैट विल गिव अस x इज इक्वल टू 4 एंड द इमेजिनरी पार्ट ओवर हियर एंड द इमेजिनरी पार्ट ओवर हियर शुड बी इक्वल, तो हमें मिल जाता है y इज इक्वल टू 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. Now the next algebra is conjugate of a complex number. Now let's see what is the conjugate of a complex number. The definition says that the conjugate of a complex number z is equal to a plus bi or a plus ib is defined as a minus ib and it is denoted by z bar. तो अगर आपके पास z नंबर दिया है जो कि है a plus bi, तो इसका अगर हमें कॉन्जुगेट चाहिए तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी z बार, और z बार में क्या हो जाएगा, द रियल पार्ट विल रिमेन सेम बट जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेशन से चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी आई. तो अगर हम लेते हैं z इज इक्वल टू ए माइनस बी आई, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a प्लस बी आई. तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं. Now there are few properties of this conjugate. The properties are the conjugate of a conjugate z is equal to z. मतलब अगर आपके पास ये नंबर है, सपोज हम एक नंबर लेते हैं 3 प्लस 2i, राइट, और मुझे चाहिए है z बार, तो z बार क्या हो जाएगा, तो जो भी रियल नंबर है वो रियल पार्ट वैसे ही रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस साइन से चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाता है 3 माइनस 2i. अब ये हमारे पास कॉन्जुगेट नंबर है. अगर हम ये कॉन्जुगेट का वापस से कॉन्जुगेट निकालते हैं, मतलब ये z बार का और एक बार z बार निकाला, तो क्या हो जाएगा, दिस रियल पार्ट विल रिमेन एज इट इज. अब ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट अपने साइन से चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2i. नाउ लुक एट दिस नंबर एंड दिस नंबर, बोथ द नंबर्स आर सेम, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट नंबर इज द ओरिजिनल नंबर. नेक्स्ट इज z इज इक्वल टू z बार. अगर आपके पास है z इज इक्वल टू z बार, देन z इज प्योरली रियल नंबर, क्योंकि अगर कोई भी इमेजिनरी पार्ट देखोगे तो इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज करने वाला है. तो अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, जैसे कि अगर मैंने लिया z इज इक्वल टू 7, तो अगर मैंने z बार निकाला, तो z बार निकालने के बाद इसके पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये z तो वैसे ही रहेगा. सी व्हाट हैपेंस, you get z is same as z bar and that is why you get it is a totally real number. Next is if you have z is equal to minus of z bar, then you can say z is purely imaginary. जैसे कि अगर हमने लिया z is equal to 3i, right? तो अगर हम देखते हैं z का नेगेशन, तो z का नेगेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3i. दिस इज माइनस जेड, राइट, ये हो गया माइनस जेड, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया. अब हम ये वाले नंबर का लेते हैं कॉन्जुगेट, तो माइनस जेड का अगर हमने कॉन्जुगेट लिया तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज करेगा, तो आपको मिलता है 3i. नाउ लुक एट दिस टर्म, तो आपको मिला z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, देन यू कैन से z शुड बी अ प्योरली इमेजिनरी number. So these are the properties of our z bar. Now next algebra that we are going to study is addition of complex number. बहुत simple है ये addition. Now suppose you are given a number z is equal to a plus bi, you are given z2 is equal to c plus di, और हमें चाहिए है z1 प्लस z2. तो z1 प्लस z2 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये a जो है यहाँ पे रियल है, ये c रियल है, तो रियल रियल टर्म दोनों प्लस हो जाएंगे, यू गेट a प्लस c. उसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों साथ में प्लस हो जाएंगे, तो आपको मिलता है दैट इज bi प्लस di. i कॉमन ले लिया तो हम लिख सकते हैं b प्लस d इंटू I. So in other words you can say real part of z1 plus z2 is real part of z1 plus real part of z2. उसी तरह से imaginary part of z1 plus z2 हो जाता है imaginary part of z1 plus imaginary part of z2. Let's take a small example, then you'll understand. Now suppose here you are having 2 plus 3i, हम add कर रहे हैं इसको
4 प्लस 3i के साथ। नाउ दिस इज वन नंबर से z1, दिस इज अवर z2। तो अब हमें क्या चाहिए है, z1 प्लस z2। तो आई के टर्म को हम साथ में करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम साथ में करेंगे, रियल टर्म्स को साथ में किया तो हमें मिलता है 2 प्लस 4। सो दिस इज 2 प्लस 4 और ये दोनों टर्म में i कॉमन है तो i हमने बाहर ले लिया, बचा हमारे पास 3 प्लस 3। सो दैट नंबर इज सेम है 6 प्लस 6i। तो ये हो गया हमारा z1 प्लस z2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Now again for addition there are few properties. Let us see what are these properties. Now for the properties of addition, if you have z1, z2, z3 are three complex numbers, then the first property is z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. small example लेते हैं, सब अभी का example लेते हैं। z1 अगर हमने लिया 2 plus 3i और हमने लिया z2 is equal to 4 plus 3i। अब हमें चाहिए है z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2 मतलब इसको इसके साथ प्लस करो तो यहाँ का रियल पार्ट यहाँ के रियल पार्ट के साथ प्लस हो जाएगा तो होता है 6 प्लस यहाँ का इमेजिनरी पार्ट यहाँ के इमेजिनरी के साथ प्लस करेंगे तो होता है 6i। अब हमें चाहिए है z2 प्लस z1। सो z2 प्लस z1 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, यहाँ का रियल पार्ट जाके यहाँ के रियल पार्ट के साथ प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 2 is 6 and here the imaginary part added to the imaginary part over here will give us 6i. So चाहे आप z1 plus z2 करो या z2 plus z1 करो, both the answers will be the same. So that property is called as the commutative property. The next property is called as the associative property. अब associative property में क्या है, अगर हमारे पास तीन नंबर है z1, z2, z3 तो हम किसी भी दो नंबर को पहले प्लस करेंगे और फिर तीसरा नंबर उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज z1 प्लस हम कंबाइन कर रहे हैं z2 प्लस z3 या फिर हम कर सकते हैं z1 प्लस z2 एंड देन z3 इज एडेड टू द नंबर। तो किसी भी दो टर्म को आप पहले ऐड करो और तीसरे को बाद में ऐड करो, दैट विल गिव यू द सेम आंसर। दिस यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ। नेक्स्ट इज z1 प्लस 0। 0 मतलब क्या होता है, 0 इन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम एज 0 प्लस 0i, राइट। तो अगर मैंने लिया z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i और मैं इसके साथ प्लस करने वाली हूँ 0 को, तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस z प्लस 0। सो इमेजिनरी पार्ट एंड द रियल पार्ट्स गेट टुगेदर and that will give us 2 plus 0 is 2, 3 plus 0 will give us 3 into I. Now this value is nothing but our z, so that is the property z1 plus 0 is equal to 0 plus z1 is equal to z1. This is called as the identity. Next is z plus z bar is equal to 2 times real part of z. Now what happens over here? Let's take z1 over here. यहाँ पे हम सेम z यूज कर रहे हैं। z अगर हमारा है 2 प्लस 3i और हम फाइंड आउट करते हैं z बार, तो z बार हो जाता है 2 माइनस 3i। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है z प्लस z बार। सो रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट विल गिव अस 4, इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 हमें मिला 0i। नाउ दिस 4 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2। अब ये 2 क्या है, तो z का वैल्यू है। सो यू कैन से z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z एंड दैट इज द आंसर। द नेक्स्ट पार्ट इज z1 प्लस z2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू z1 कॉम्प्लीमेंट प्लस z2 कॉम्प्लीमेंट। इसका वेरिफिकेशन आप खुद से करके देख लो, is the property valid or no? The property should be valid. So this is z1 plus z2 complement is equal to z1 complement plus z2 complement. So these are the properties of addition. Now let's start with the next algebra. The next algebra is subtraction of complex number. अब जैसा एडिशन हमने किया था उसी तरह का सब्ट्रैक्शन होता है। देयर इज नो मच डिफरेंस। जहाँ पे हम ऐड कर रहे थे दोनों नंबर को z1 और z2 को, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे z1 और z2 को। So suppose you are having z1 is equal to a plus bi, you are having z2 is equal to c plus di, and now we are going to define z1 minus z2. So z1 minus z2 हो जाता है c
दिस इज a प्लस बी आई प्लस, ये जो पूरा नंबर है ये माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये होता है माइनस सी माइनस डी आई, सो दैट विल गिव अस a माइनस सी प्लस आई इंटू बी माइनस डी। तो रियल पार्ट को हमने सब्ट्रैक्ट किया और इमेजिनरी पार्ट को हमने सब्ट्रैक्ट किया। सो हेंस यू कैन से रियल पार्ट ऑफ z1 minus z2 is equal to real part of z1 minus real part of z2। उसी तरह से imaginary part of z1 minus z2 is equal to imaginary part of z1 minus imaginary part of z2। Let's take the same example. Suppose you are having z1 is equal to say 2 plus 3i and you are having z2 is equal to 4 plus 3i। अब हमें चाहिए है z1 minus z2। अब z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट ये रियल पार्ट, सो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दैट इज 2 प्लस 3i माइनस हम कर रहे हैं 4 प्लस 3i। सो ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो ये होता है 2 प्लस 3i माइनस 4 माइनस 3i। सो ये इसके साथ जाएगा, ये टर्म इसके साथ जाएगा। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, हियर 2 माइनस 4 विल गिव अस माइनस 2, 3 माइनस 3 विल गिव अस 0i। सो इमेजिनरी पार्ट को हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमने रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया z1 माइनस z2। We'll go to the next algebra of complex number, that is scalar multiplication. Now let's see what do we mean by scalar multiplication. If z is given as a plus bi is a complex number, then for any real number k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, we define k into z is equal to k into a plus i into k into b। तो k से हम जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट ओपन किए हैं। Let's take an example. Suppose you are having z is equal to 7 plus 3i, then अगर हमें चाहिए है 5 times z तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले नंबर को, तो ये हो जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3i। ब्रैकेट ओपन करो, 7 5 हो जाता है 35 एंड 5 3 हो जाता है 15 इंटू i। तो ये मिला हमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेरी सिंपल स्केलर मल्टीप्लीकेशन। Now we are next going to see multiplication of two complex number। अब देखते हैं multiplication कैसे करते हैं। Now here we are going to take z1 is equal to a plus bi, we are taking z2 is equal to c plus di। We denote the multiplication z1 and z2 as z1 into z2, z1 dot z2, and it is given by, हम क्या करेंगे, z1 इंटू z2 है तो z1 का वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी आई, z2 का वैल्यू हमारे पास है c प्लस डी आई। दोनों के लिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो हमने स्कूल में सीखा है ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं। सो ये वाले टर्म से हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाता है a इंटू सी प्लस डी आई प्लस दिस इज बी आई इंटू सी प्लस डी आई। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज रिटन एज i इंटू बी एंड आई रीड इट एज बी आई, बोथ ऑफ देम आर द सेम टर्म्स। ओके, so that is going to give us, just opening up this bracket, so ये हो जाता है a into c plus this is ad into i प्लस यहाँ का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाता है बी सी इंटू आई प्लस दिस इज आई स्क्वायर इंटू बी डी। लेकिन हमारे पास आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू क्या हो जाता है, रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये मिलता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इन दिस टर्म। हमेशा याद रखना है, अगर आई है तो आई को हम वैसे ही रखते हैं, लेकिन जैसे ही आई का पावर ज्यादा हो जाता है 2, 3, 4, 5 एनी अदर पावर ऑफ आई, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दैट टर्म। जैसे यहाँ पे हम आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो विल पुट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट विल गिव अस, ये हो जाता है AC, साथ में करेंगे तो हमें मिल जाता है, या दो टर्म में हमने I कॉमन ले लिया तो ये हो जाता है AD प्लस BC इंटू आई। यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू हमने डाल दिया -1 तो ये हो जाता है -B इंटू डी। अब ये रियल टर्म है, ये भी रियल टर्म है, तो दोनों टर्म को हम, if you take both the terms together you are going to get this value as A into C minus this is B into D plus this is A into D plus B into C into
I, तो ये हो जाता हमारा Z1 इंटू Z2। तो जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा, जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट, पुट द वैल्यू ऑफ I square is equal to -1 and you will come to the answer. So this is the way you are going to solve multiplication of two complex numbers. Now we are going to see some properties of multiplication. Now again in multiplication we have commutative rule, we have associative rule, we have identity rule. सेम एडिशन में दिस प्रॉपर्टी वॉज देयर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव भी था और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी था, तो जीरो को हमने ऐड कर दिया था वहां पे। सो हियर ऑल्सो यू हैव Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसको। यू कैन वेरीफाई ऑल दिस प्रॉपर्टी यूजिंग एनी टू नंबर्स। नेक्स्ट इज Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। तो यहाँ पे किसी भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो और तीसरे को बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई करो। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वहां पे भी उसका नाम आइडेंटिटी था, यहाँ पे भी इसका नाम आइडेंटिटी है। डोंट गेट कंफ्यूज, दैट वाज एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है और एडिशन के लिए 0 होता है। सो Z1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ZI। अब ये 1 अगर हम देखें, हमारे पास है Z से लेट्स टेक Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3I, राइट। तो 1 जो हमारे पास यहाँ पे है, ये 1 जो है वो रियल नंबर है, तो इट इज जस्ट मल्टीप्लाइंग विथ 1 प्लस 0I। ओके तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको मिल जाएगा ये आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ऐसा ही प्रॉपर्टी हमने एडिशन में भी देखा था। नेक्स्ट इज इफ यू आर हैविंग Z इज इक्वल टू A प्लस BI, देन यू कैन से Z इंटू Z बार इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी देखते हैं। वी आर टेकिंग Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3I, तो हमें Z बार मिल जाता है Z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3I। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं Z इंटू Z बार, सो Z इंटू Z बार होता है 2 प्लस 3I मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3I। अब अगर ये टर्म देखें हम, तो ये हो जाता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये हो जाता है A स्क्वायर माइनस दिस इज B स्क्वायर। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और I का स्क्वायर हो जाएगा I स्क्वायर। लेकिन हमें पता है I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। सो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ I विल पुट I स्क्वायर विल पुट द वैल्यू ओवर हियर and that will give us 4 minus 9 multiplied by -1, so that is 4 plus 9 and 4 plus 9 will give us 13। सो Z इंटू Z बार अगर हम करेंगे तो हमें मिलता है अ रियल नंबर। ये हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा। देयर विल बी नो कॉम्प्लेक्स टर्म इन Z इंटू Z बार। आई होप you have understood the properties of multiplication. Now students, we are going to start with exercise number 1.1. Now in this we are going to solve few examples. So first we are going to see how to write the conjugate of a complex number. ये हमने देखा है, बहुत easy भी है. So let's take the first example. We want to find out what is the conjugate of minus of root of 5 minus root of 7i. So in the solution हमारे पास है z हमें दिया है माइनस ऑफ रूट ऑफ i माइनस दिस इज रूट ऑफ 7 इंटू आई। अब हमें चाहिए है z बार। तो z बार में क्या होता है, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है वो अपना साइन चेंज करेगा, रियल पार्ट विल रिमेन एज इट इज। तो अगर ये वाला टर्म हम देखें, ये वाले टर्म में i नहीं है, तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट विल रिमेन एज इट इज। सो रियल पार्ट विल रिमेन एज इट इज। ये हो जाता है माइनस ऑफ रूट ऑफ 5। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये अपना साइन चेंज करेगा, तो माइनस का हो जाएगा प्लस इंटू दिस इज रूट ऑफ 7 इंटू आई। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम द सेम ग्रुप. Again we want to find out the conjugate of the following number. So here we want to find out minus of root of -5 conjugate. So in the solution again we are going to take z is equal to minus of root of -5.
अब हमें देखना पड़ेगा क्या जो ये नंबर हमें दिया है ये रियल नंबर है या ये इमेजिनरी नंबर है. फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट इट. तो प्रीवियसली हमने देखा था रूट था, लेकिन रूट के अंदर का जो टर्म था वो नेगेटिव नहीं था. यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है, सो दैट टर्म इज सेम एज माइनस ऑफ, ये हो जाएगा रूट ऑफ आई इंटू रूट ऑफ -1. और हमें पता है रूट ऑफ -1 का वैल्यू हो जाता है 1, सॉरी आई. सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ रूट ऑफ आई इंटू आई. अब अगर ये वाला नंबर हम देखें तो ये वाला नंबर हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं z बार. तो यहाँ पे अगर रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट हो जाता है 0 माइनस दिस इज रूट ऑफ आई. तो इसका अगर कॉन्जुगेट हमें लिखना है तो नेगेशन यहाँ पे जो है वो अपना साइन चेंज करेगा, ये हो जाता है पॉजिटिव रूट ऑफ 5 और ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. हमेशा आपको देखना पड़ेगा जब भी रूट साइन रहेगा, रूट साइन के अंदर का नंबर पॉजिटिव दिया है या नहीं. पॉजिटिव दिया है तो वो पूरा नंबर रियल हो जाता है, लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस साइन आता, अगर आपको ये सम ऐसा पूछता, रूट ऑफ 5 पूछते, तो ये आपका अगर z होता तो आप अगर z बार इसका फाइंड आउट करते तो ये 5 जो है वो पॉजिटिव है तो रियल है. ये माइनस साइन मतलब ये पूरा नंबर जो है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो वैसा ही रहता है, तो ये हो जाता है रूट ऑफ 5 एज इट इज, माइनस साइन भी एज इट इज. सो ये हो जाता है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. So let's see the next sum. This is find a and b if we are given the sum is a plus b multiplied by 2 plus I is equal to b plus 1 plus this is 10 plus 2a into I. Now let's see the solution. Solution में हम sum copy कर लेते हैं. The sum given is we are given a plus b multiplied by this is 2 plus I is equal to right hand side this is b plus 1 plus this is 10 plus 2a into I. Now if you look at the left hand side में हमारे पास है multiplication of complex number. राइट हैंड साइड अगर देखे तो ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है. ये दोनों भी टर्म के अंदर आई का टर्म नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ रियल पार्ट ऑफ द गिवन नंबर. तो हम क्या करते हैं, लेट अस पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर एंड दिस पार्ट इज रियल और ये पार्ट हो जाता है इमेजिनरी पार्ट. तो ये साइड में तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें मिल गया, उसी तरह से ये साइड में भी हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए. तो उसके लिए हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो दैट इज a मल्टीप्लाई बाय दिस इज 2 प्लस आई प्लस दिस इज b मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को वैसे ही रखेंगे, दैट इज b प्लस 1 प्लस दिस इज 10 प्लस 2a इंटू आई. अब ओपन करते हैं ब्रैकेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 2a प्लस दिस इज ai प्लस दिस इज 2b plus bi is equal to right hand side as it is, that is b plus 1 plus this is 10 plus 2a whole multiply by I. अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो i के टर्म्स है उनको हम साथ में करेंगे, जो रियल टर्म्स है उसको हम साथ में करेंगे. तो ये हो जाता है 2a plus 2b एंड द इमेजिनरी टर्म इज a प्लस b. इनमें से हमने i कॉमन ले लिया, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस दिस इज 10 प्लस 2a इंटू आई. अब वी कैन अप्लाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलता है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1 and we get a plus b is equal to 10 plus 2a. अब ये वाले इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं. सो दिस b टेकन टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस b हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1. यहाँ पे 2a वी आर टेकिंग टू द अदर साइड, सो दैट वैल्यू इज a माइनस 2a, दैट विल गिव अस माइनस a प्लस दिस इज b इज इक्वल टू 10.
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें मिले हैं दो इक्वेशंस, दो अननोन में, सो वी कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। सो विल सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। हमारे पास है 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, हमारे पास है माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। So that means this value get cancel. यहाँ पे है 2a plus a will give us 3a is equal to 1 minus 10 will give us minus 9, giving us the value a is equal to minus 3. So a is equal to minus 3 हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, आइदर यू टेक इक्वेशन नंबर 1 और यू टेक इक्वेशन नंबर 2, किसी एक इक्वेशन में हम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 इज माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10। a का वैल्यू हमारे पास है माइनस 3, सो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 10, गिविंग अस 3 प्लस b इज इक्वल टू 10 एंड गिविंग अस b इज इक्वल टू 7. So therefore we have got a is equal to minus 3 and we got b is equal to 7, and that is the answer, and the sum is over. I hope you have understood this sum. Let's take one more example. Now here we want to simplify the given term. Term हमारे पास है 4 times root of minus 4 plus 5 times root of minus 9 minus 3 times root of minus 16. अब इसको कैसे solve करें? So in the solution, let us take down the same sum. So here we are given 4 times root of minus 4 plus this is 5 times root of minus 9 minus 3 times root of minus 16. Now let's look at the term. मैं एक का कैलकुलेशन आपको बताती हूँ, बाकी आपको आराम से समझ में आएंगे। नाउ लेट्स लुक एट रूट ऑफ माइनस 4। रूट ऑफ माइनस 4 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ माइनस 1। अब रूट ऑफ 4 का वैल्यू हमें पता है 2 है, और रूट ऑफ माइनस 1 अगर हम देखें, रूट ऑफ माइनस 1 हो जाता है i। तो एक्चुअल में ये टर्म हमारे पास क्या है, तो 2i दिया हुआ है। तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे रूट ऑफ माइनस 9, सो रूट ऑफ माइनस 9 क्या हो जाएगा, 9 का रूट हो जाता है 3, रूट ऑफ माइनस 1 हो जाता है i। और उसी तरह से रूट ऑफ माइनस 16 इफ यू से, रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4 और रूट ऑफ माइनस 1 हो जाएगा i। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 2i प्लस दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3i, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4i। नाउ विल डू द कैलकुलेशन। 4 2 हो जाता है 8i, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाता है 15i माइनस दिस इज 4 3 हो जाता है 12i। सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 8 प्लस 15 माइनस 12, 11i, and that is the answer. I hope you have understood this, student. So students, will stop over here for the day. Have a nice day and thank you.